Thank you so much, Anirudh Swai. Join me here on Instagram Live Cricket Vani. आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अ, और ग्रैंड वेलकम अनिरुद्ध। मैंने आपका नाम रखा था रूथलेस अनिरुद्ध। आप जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, मतलब वो गेंदबाजों का धागा खोलते हैं और गेंद को हवाई फायर पे आप भेजते हैं। बहुत सारे बातचीत होगा, कम से कम 40 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। आप एक कांस्टेंट। जी बिल्कुल। सिर्फ आपका शकल मतलब फेस आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा शरीर आएगा तो बेहतर हो सकता है। सिर्फ इतना आ रहा है। ହାତରେ ଧରି ଦଉଛି। हाँ, हाथ पे पकड़ लीजिए, सही रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच और ग्रैंड वेलकम क्रिकेट वाणी पे आपका। पहला सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, आपका घर कहाँ पे है? थोड़ा सा आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ବୁଧା ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଶୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଶୋ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ କରିବେ କାହା ସହିତ ଲାଇଭ୍ କରିବେ। जी ମୋ ଘର କଥା କହିବି, ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ। जी। ଆ, केंद्रापड़ा। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। और किसने सोचा था कि केंद्रापड़ा से एक खिलाड़ी आएगा जो उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे तहलका मचा देगा, और आपने हल्ला मचाया है, आपका बल्ला हल्ला बोला है। केंद्रापड़ा का स्टार, और आपको अन्ना के नाम से बुलाया जाता है, अनिरुद्ध अन्ना। कैसे ये शुरुआत हुआ था क्रिकेट कैरियर? कब आपने सोचा कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट को अपनी पैशन बनाना है, क्रिकेट से ही आगे की तरफ बनना है? कब से ये सिलसिला शुरुआत हुआ था आपका? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଯେ କି ଇଚ୍ଛା ଯେ କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳୁଥିଲି। ମୋ ନନା ଖେଳୁଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା ବୋଲି, ସେ जी। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର। ସେ ଡିଭିଜନ ଖେଳନ୍ତି, ମତେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। हम्म। ଯେ କି ମାନେ ମୋ ନିଜର ନୁହଁ, ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ, ମାଉସୀ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ। जी ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ସେ ମତେ ଶିଖଉଥିଲେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଖେଳୁଥିଲେ ବଡ ବଡ ଟ୍ରଫି ସବୁ ଉଠଉଥିଲେ, ମତେ जी ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ନନା ମୁଁ ବି ଖେଳିବି। ମତେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ପାଖରେ ବଲ ପକେଇବେ, ମତେ ଖେଳ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋ ନନା। ତାପରେ जी ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଆସିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଏମିତି ଲୋକାଲରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ୍ ଖେଳେ। ତାପରେ ଲୁଲନ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ନାଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଲୁଲନ ଭାଇ ଆମ ଟିମ୍ ବାବା ଇଲେଭେନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ, ବହୁତ जी ବଡ ନାଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ଯେ କି ତାଙ୍କ ପଡିଆକୁ ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ। ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଖେଳିଲି, ଭଲ ଖେଳିଥିଲି। ସିଏ ମତେ जी। ପ୍ରଥମେ ବାଲାବାଦ ଟିମ୍ ରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ओ। ବାଲାବାଦ ଟିମ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖେଳିଲି, ବାଲାବାଦ ଟିମ୍ ରୁ ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବାହାରେ ଟିମ୍ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିଲି। जी। ଯେ କି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିନୁ ବି ଖେଳୁଥିଲା, ଆମ हम्म ବାଲି ରାଜା ବି ଖେଳୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ବଣ୍ଟି, ଲୁଲନ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ମତେ ବାହାରକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ। ଲୁଲନ उसके ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁ बाद କିନ୍ତୁ ମୁଁ। उसके बाद आपने कमांडो 11 के साथ कुछ मुकाबला खेले हैं, यूनिक 9 की तरफ से आप कुछ मुकाबला खेले हैं, और बाबा 11 का मतलब सबसे बड़ा बल्लेबाज भी आप रह चुके हैं। नाइट मैच पे मतलब कुछ अलग रूप आप धारण करते हैं। सॉफ्ट टेनिस का गेंद हो तो फिर उस गेंद को आप दो टुकड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए यादगार हो, उस मैच को आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मेमोरेबल ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିମ୍ ର ଆମ ବାବା ଇଲେଭେନ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଛି। जी ବାବା ଇଲେଭେନ ଆମର ଛୁଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, जी। ଏଇ ବର୍ଷର ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଛୁଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଡ ଆକାରର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମ ଟିମ୍ ରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ ଚାରୋଟି ବୋଲର ନେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆମର ପୁରା ପ୍ରପର ନିଜ ପିଲା ନେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆମକୁ 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହରେଇଥିଲା। फाइनल तांको हरैथिलु, बहुत भलो भलो टीम को हरैथिलु। जी बिल्कुल। वो छोटी टूर्नामेंट को आप अपना मेमोरेबल मैच मानते हैं, और वहां पे आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी दिखाया था। और थोड़ा सा रिकॉर्ड के ऊपर आएंगे, आपने क्या अभी तक अचीव किया है, क्या आपने उपलब्धियां कमाया है? एक रिकॉर्ड को याद कीजिए जो अनिरुद्ध का सबसे बढ़िया स्कोर हो, या फिर गेंदबाजी पे आप विकेट चटकाया हो।
एक सबसे बढ़िया पारी को याद कीजिए। मोटामोटी खेल होता सेमीफाइनाल मैच थिला। हम्म। सेमीफाइनाल 128 रन मारथिली। क्या परफॉर्मेंस क्या था? बल्ले के साथ आपने कितना रन बनाया था उस टूर्नामेंट पे? 128 मारथिली, 128। याद है कितना बॉल पे आपने बनाया था? अगले 15 ओवर खेल होता मुझे जाइए थर्ड डाउन बैटिंग। जी 5 ओवर पर जाइए। जी। तो लगभग आपके पास वो 10 ओवर का गेम था। शायद 10 ओवर के गेम पे कम से कम आप 6 ओवर तो जरूर खेले होंगे 128 रन बनाने के लिए। 36 से 40 गेंद जरूर आपने लिया है उस पारी को भूनने के लिए। 128 रन की पारी, अनबिलीवेबल अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, मैन ऑफ द मैच। किसी भी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है, यानी कि उस मैच को जब हम याद करेंगे तो फिर उस खिलाड़ी का जो रोल था उस खिलाड़ी के नाम से हम याद करेंगे। तो एक मैन ऑफ द मैच जो आपका फेवरेट हो, जो आपके दिल के अजीज हो, एक फेवरेट मैन ऑफ द मैच को शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पर। मैन ऑफ द मैच बहुत अच्छी सीजन पाइक माल भी बहुत भल खेली। ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରଫି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଭଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସଲମପୁରରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା। जी ସେଠି ଆମ ଟିମ୍ 4-5 ଓଭରରେ 30 ରନ୍ ହିଁ କରିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ 6 ରନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ମୁଁ 34 ରନ୍ ମାରିଥିଲି। जी। ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଟ୍ରଫି ଦେଇଥିଲେ ମତେ तो ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ मैच ମ୍ୟାଚ୍। तो ସେଇଟା ହିଁ याद है। ବହୁତ और मेरे मेरे आसपास जितने लोग थे वो भी चर्चा कर रहे थे कि ये यार कैसे यार छक्का चौका लगाते हैं, मतलब ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और आपका रीस्ट पावर बहुत लाजवाब है। और आप जब भी छक्का लगाते हैं वो छोटा मोटा छक्का नहीं होता, वो बहुत बड़ा बड़ा छक्का होता है। चलिए, सलमपुर मैच आपका बेस्ट मैन ऑफ द मैच आपने बताया। एक मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको अच्छा करना पड़ेगा, वो बेहतर से बेहतरीन तक आपको जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज जो आपका फेवरेट हो और आप कभी भी वो ट्रॉफी को देखते हैं तो फिर उस मैच का आप यादें को थोड़ा सा ताजा करते हैं। और एक बार उस यादें को थोड़ा सा ताजा कीजिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स। ମାନେ ଏଇ ସିଜନ ନା ଟୋଟାଲ ହୋल ସିଜन କହିବି। होल 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 आपने जब जब से क्रिकेट खेले हैं सबसे बढ़िया टूर्नामेंट आपका कौन सा टूर्नामेंट गया है और आप उस टूर्नामेंट पे मैन ऑफ द सीरीज बने थे? ସବୁଠୁ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ମୋର ସେମିତି ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେମୋରେବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ମୋ ଟିମ୍ ଇଚ୍ଛାପୁର ବୋର୍ଡରୁ ଖେଳୁଥିଲି। हम्म। ଆମର ସେ ଜାଗାଟା ତ ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ଜାଗାଟା। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस टूर्नामेंट का नाम याद है आपको? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ହଉଥିଲା ଆମର ଏପଟ ନିକ୍ରେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ। निखिराई ନିକ୍ରେଇ के ସହିତ साथ ସେ फाइनल ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ मैच। तो उस टूर्नामेंट पे ସେ आप मैन ऑफ द सीरीज बने थे? ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ଥିଲି। 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ 3ଟା 50 ମାରିଥିଲି। वाह। और वो फाइनल मैच पे क्या हुआ? निखिराई सामने पे था। निखिराई हम जानते हैं कि निखिराई एक बेहतरीन टीम है। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ फाइनल मैच रे 43 रन मारी आउट हो जाइଥିଲି। हारिगलु मैच, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। तो टीम हार गया था लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस था वो उभर कर आया था। आपकी परफॉर्मेंस ने आपने प्रभावित किया सारे दर्शकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट चैंपियनशिप कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे वो आप उस किताब को हासिल किया, उस ट्रॉफी को हासिल किया, जो सबसे यादगार चैंपियनशिप आपके लिए? यादगार पाइकमाल टूर्नामेंट। पाइक माल, वाह। काफी बेहतरीन टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। थोड़ा सा लाइट शॉट था लेकिन आउटफील्ड के बारे में बात करें, पीच के बारे में बात करें, जो ऑर्गेनाइज किया था वो काफी लाजवाब था। और पाइक माल टूर्नामेंट जरूर आप लोग जब दोबारा देखना चाहते हैं तो फिर हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अनिरुद्ध का वो रूथलेस पारी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो चैंपियनशिप तब आप यूनिट 9 के साथ जुड़े हुए थे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे यूनिट 9 टीम के बारे में। कैसा यूनिट 9 से कैसा लगाव है, कैसा जुड़ाव है और
क्या माहौल रहता है डगआउट पे? यूनिट 9 खेमा पे जब आप गए थे तो फिर कौन सा सीनियर खिलाड़ी आपको कुछ टिप्स देते हैं, या फिर उनका जो ओनर नखिया नना है वो कुछ आपको बताते हैं, तो कैसा माहौल रहता है यूनिट 9 का? प्रथमे ନଖିଆ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି। ନଖିଆ ମାନେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ହଉଛି 15 ବର୍ଷର ଟିମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେ କି ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିମ୍ ଓଡିଶାର, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟିମ୍। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖେଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। जी। ଆଉ ନଖିଆ କଣ କହିବି, ସେ ପ୍ରତି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। जी। ସମସ୍ତ ସବୁ ଟିମ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କି ନୂଆ ପିଲା କି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଯେତେକ ବି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଦେଖିବେ ସବୁ ନଖିଆ ପଟରେ ହିଁ ଖେଳିକି ନାଁ କରିଛନ୍ତି। जी। ଆଉ सही बताया ଏ आपने। ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏମିତି ବାବା ଇଲେଭେନରେ ଖେଳୁଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଥିଲା ମୋର ଏ ସିଜନରେ। जी। ବେନା ଭାଇ ଦେଖିଥିଲେ, ବେନା ଭାଇଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଦିଏ। ମାନେ हाँ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଭରେଜ ଟାଇପର ଖେଳିଦିଏ। ମତେ ବେନା ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆମେ ଯିବା ବରଗଡ଼ ଯିବା। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଗଲି, ବରଗଡ଼ କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି। ବରଗଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଆଡେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ନା। जी। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଯାଇ ଗଲି ଖେଳିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲି ତାଙ୍କ ଟିମରେ। ସିଏ ମତେ ହିଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବେନା ଭାଇ। तो ଆଉ बेनुधर मेहरा, थैंक यू सो मच। आप अनिरुद्ध का टैलेंट को पहचाना और आपके टीम पे अपनी जगह दिया, और अपने मैच विनिंग नॉक खेला था। और मतलब आखिरी समय पे आके फिनिशर का रोल अदा करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, हमने हार्दिक पांड्या को देखा है, अभी के दौर पे देखे तो राहुल तेवतिया आईपीएल पे जिस हिसाब से उन्होंने फिनिश किया था, डेविड मिलर, तो उस प्रकार का रूप आप धारण करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिट 9 अनिरुद्ध को आपका मौका देने के लिए, और मौका पे वो चौका नहीं सिर्फ छक्का लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप कितना शतक लगा चुके हैं? हाउ मेनी सेंचुरी आपके कैरियर पे आप ମୋର लगा चुके हैं? ଚାରିଟା 100 ମାରିଛି। 4 शतक। गेंदबाजी कर लेते हैं आप? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି। जी। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ପକଉଥିଲି जी। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେସ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଟର ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ କମ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ସିଧା ହିଁ ପ୍ରାୟ ଖେଳୁଥିଲେ। जी। ମୁଁ ଟିକେ ଇନକଟର ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଯୋଉ ମତେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଖେଳାନ୍ତି। जी। कभी आपने 5 विकेट लिया है, पंजा खोला है? 5 ୱିକେଟ 5 विकेट। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ जी। ବାହାରେ ସବୁଠୁ 5ଟା 'ୱିକେଟ ନେଇ, ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଚରେ 5ଟା 'ୱିକେଟ ନେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଓଭର ପକେଇଥିଲି। 5 ଓଭର ଖେଳରେ ମୁଁ 1 ଓଭର ପକେଇଥିଲି। ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିକିରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଆମର ବାଲିଆରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ରାଜେଶଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା। जी। ସେମିଫାଇନାଲ ଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ 3ଟି ହାଟ୍ରିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, ଯେ କି जी। ଜଗନ ଭାଇକି ଆଉଟ କରିଥିଲି, ବେନା ଭାଇକି ଆଉଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗିରି ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଜଣେ ଖେଳୁଥିଲେ ନିକିରେର, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ जी। କରିଥିଲି। और यहाँ पे किसने लिखा है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, अक्षय कुमार, कि लेफ्टी बैट्समैन को आप और भी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं, आप खामोश रखते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को, क्या ये बात सही है? ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଅକଟର ଟିକେ ବେଶୀ ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ବୁଲେ ମୁଁ ଅଟକେଇ दिए। लेफ्टी की ଭଲ ପକାଏ ସବୁଠୁ। जी बिल्कुल, उन्होंने सही लिखा है। थैंक यू सो मच अक्षय भाई। तो जानना चाहेंगे टॉप 5 बैट्समैन उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का, सिर्फ आपको 2021 2022 का सीजन को मद्देनजर रखते हुए वो 5 बल्लेबाज का नाम लेना है जो अनिरुद्ध को प्रभावित किए हैं। राइटी 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 लेफ्टी चलेगा, लेकिन 5 बल्लेबाज का नाम लेना है। सिर्फ इस सीजन को आप जब देखेंगे, इस सीजन पे वो 5 बल्लेबाज जो अनिरुद्ध को प्रभावित किए हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଦନ ଭାଇ मदन। ଏ ସିଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। हम्म। ପ୍ରତି ସିଜନ ଭଳି ଏ ସିଜନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅଜର ଭାଇ, अच्छा, निकी राई। ଅଜର ଚାଚା, ଆଉ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ। सुमंत। लास्ट 2, मदन, अजहर, सुमंत। बादशाह खान। बादशाह खान। लास्ट 1।
सत्य विहार पप्पू। पप्पू भाई, मतलब अनुभव का कोई कमी नहीं। पांच बल्लेबाज का आपने नाम लिया, बतौर गेंदबाज आप जब भी ये पांच बल्लेबाज को गेंद डालेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा किस बल्लेबाज के सामने। थोड़ा सा मतलब वो मन पे थोड़ा सा डर रहेगा यार, इस बल्लेबाज को ना वो डॉट बॉल डाल के निकल जाता हूँ, उकेल लेने के लिए आप नहीं देखेंगे। थोड़ा सा आपके सामने शायद वो बेहतर बैटिंग कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है ये पांच बल्लेबाजों से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अनिरुद्ध को गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, सिर्फ एक बल्लेबाज का चुनाव करना है पांच बल्लेबाजों से। ये पांच जन ना नेली बहुत भल बैट्समैन जे सब बॉल ही फेस कर परिबे। मते सबुठु डर लगे जे कि बोलिंग करियाकू हमर अजर भाई मु सब अच्छा, बोलिंग टिके पके दे किंतु से मते भल मार दियो। जी बिल्कुल। अजहर करीम, करीम चाचा ने बताया था कि अजहर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अजहर का नाम आपने लिया और काफी टैलेंटेड प्लेयर है। हम भी इंतजार किए हैं कि अजहर करीम कब हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आपको चूज करना है या फिर बताना है कि टॉप फाइव बॉलर उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का सिर्फ इस सीजन को जब आप याद करेंगे। एक नंबर रे बाया मनोज यूनियन कुमार नाइन। राव, बी नंबर रे टुटू गा। टुट्टू खान, महालक्ष्मी इलेवन, लुटू वॉरियर्स, एमएमसीसी संबलपुर, मनोज इलेवन, तेलकोई, ऐसे बहुत सारे टीम है। वहां से भी आप कुछ गेंदबाज को ले सकते हैं। कुशवा राजू भाई। कुशवा राजू भाई। कोसला राजू, जी बिल्कुल। मनोज कुमार राउत, कोसला राजू, फिर आपने बताया था और किसका नाम आपने बताया? टुटू भाई टुटू गा। टुट्टू खान, जी बिल्कुल। तीन गेंदबाज हो चुके हैं, सिर्फ दो गेंदबाज का नाम बचा है। देखते हैं किसका नाम आएगा। अनिरुद्ध का चॉइस क्या रहेगा, किस गेंदबाज के पास जाएंगे? ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ରାକେଶ ଭାଇ। राकेश, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन पे। लास्ट वन। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବେଷ୍ଟ ବୋଲରରେ ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଏବେ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ। हम्म। आखिरी आखिरी गेंदबाज का नाम ଆମ लेना ଟିम है। ବାବା ଇଲେଭେନ ଆମ ଟିम ବାବା ଇଲେଭେନ ବବୁଲ ଭାଇ। बबलू। तो ये पांच गेंदबाज बतौर बल्लेबाज, किस गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहेंगे, थोड़ा सा वो डिफेंस करना चाहेंगे, हवाई फायर नहीं करना चाहेंगे? किस गेंदबाज के सामने थोड़ा सा मतलब आप धीरज के साथ बैटिंग करने की कोशिश करेंगे? ଆମର ଭାଇଆ ଭାଇ ବହୁତ ତାଙ୍କର अच्छा, ବଡ ବଡ ଟପ୍। जी। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्या खास बात रही है मनोज कुमार राउत के पास जब गेंदबाजी करते हैं? पता है सबको कि कटक स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आप बहुत करीब से जानते हैं उनकी गेंदबाजी पे क्या वो पहनापन है, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଲ୍ ହିଁ ପକାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ବଲ୍ ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ନୂଆ ବଲ୍ ରେ। जी ବଲ୍ ରେ ମେନ୍ କଣ ତାଙ୍କ ଟର୍ନ ଟା ଏତେ ବଡ କି ଯେ କି ସେ ଲେଗ ସାଇଡ୍ ରୁ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁ ଟାଣନ୍ତି ଯେ କି ତମ ଲେଗ ସାଇଡ୍ ହିଁ ମାର ଲେଗ ରେ ମାରିଲେ ହିଁ ଫସିଯିବ ତମେ। जी जी। और यहाँ पे नारायण भाई ने लिखा है कि बाबूनी का नाम लेना आप शायद भूल गए। थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत। जी। अ, नारायण शर्मा ने लिखा है कि बाबूनी का नाम लेना आप थोड़ा सा भूल गए। क्या बाबूनी को आप वो टॉप फाइव गेंदबाजी लिस्ट पे रखना ଆମେ चाहते थे? ବାବୁନି ବାବୁନି ନା କାହିଁ ନେଲେନି ବାବୁନି ନା ସାରା ଓଡିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ବୋଲର जी ଯିଏ जी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। जी। ଦେଖ ବାବୁନି ମତେ ଗୋଟେ ସିଜନ ରେ 14 ଥର ଆଉଟ କରିଛି। यार ସିଏ ତ क्या ମାନେ बात। ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର ସେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବଲ୍ ସବୁଠୁ ମାରିବାକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। जी। तो बाबूनी भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, ये सबको पता है। और अनिरुद्ध कुछ नए गेंदबाज का नाम ले रहे थे जो शायद आने वाले समय पे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बबलू का नाम लिया बाबा इलेवन से, मैंने भी उनको थोड़ा बहुत देखा है। बहुत अच्छी टैलेंट है उनके पास, बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको मैचेस का जो एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए।
मेरे विचार पे नेक्स्ट सीजन पे शायद बबलू और भी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं। टॉप 5 ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, मतलब तीनों डिपार्टमेंट पे धांसू क्रिकेट खेलते हैं। टॉप 5 ऑलराउंडर का नाम लीजिए। ऑलराउंडर संबलपुर छोटो आकाश। छोटू आकाश। ऑलराउंडर हुसैन भाई। हुसैन। नंबर 3। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास बाउ मंडू का ऑप्शन है, विश्वरंजन साहू का ऑप्शन है, इमरान खान का, टीपू सुल्तान का, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी। तो आप नंबर 3 पे किसको रखेंगे? नंबर नंबर 3 रे हमरो इमरान भाई। इमरान। नंबर 4। नंबर 4 रे चिन्नू भाई। विश्वरंजन साहू। लास्ट वन। लास्ट वन रे टॉप 5 ऑलराउंडर ए वर्ष रो सबुठु भलो परफॉर्मेंस देजंती हमरो आशीष भाई आईआरसी। जी जी जी, आशीष महापात्र। मेरे विचार पे सबसे बढ़िया खिलाड़ी इस साल का आशीष महापात्र। तो ये 5 ऑलराउंडर का आपने नाम लिया। अब जो सवाल मतलब हर किसी खिलाड़ी को थोड़ा सा तंग करता है, थोड़ा सा टेंशन बढ़ा देता है कि टॉप 5 बिगेस्ट टूर्नामेंट जहां पे अनिरुद्ध खेलना चाहते हैं या फिर खेले नहीं या फिर खेल चुके हैं, आप वो टॉप 5 टूर्नामेंट पे किस किस टूर्नामेंट का नाम रखना चाहेंगे? ये प्रथमे बागिडिया एक नंबर जो बागिडिया को कहना मु लाइव देखुଥିଲି बहुत भलो खेल होउतिला सेठी। तो समस्त ही तांकर बागिडिया कप रे विषय में चर्चा करूछन्ती बहुत। माने जी हमहु भी कॉल आस्तिला बुझिबा पई किंतु हमर जे ओनर हमर ताको बापा एक्सपायर करि जायतिले जी कि आमे पूरा लास्ट मोमेंट रे ताको मना करथिलु आ जाई पनथिलु। प्रथमे बागिडिया को जी हमर बड़ बुदा बहुत भलो खेल हुअन्ति ऑर्गेनाइजेशन बहुत भलो। जी। जगतसिंहपुर सुकुनेई बड़बुदा। सुकुनेई मु 3 आज्ञा सुकुनेई सुक्कू नहीं तापरे प्रीमियर ए लीग वर्ष थोड़ा सा खेल होतला नेटवर्क। लकी डब्ल्यू। जी, आपने पहले बताया बागड़िया कप अनुगुण, फिर बड़ौदा जगतसिंहपुर, सुकुने प्रीमियर लीग, ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और नंबर 4 पर किस टूर्नामेंट को आप रखना चाहेंगे? नंबर 4 लकी डब्ल्यू। और एक बार बताइए। लकी डब्ल्यू शायद सुनाई नहीं दे रहा है, और एक बार रिपीट लकी कर। डब्ल्यू ट्रॉफी ये एबे खेल होतला लकी डब्ल्यू ट्रॉफी जो हमरो चैंपियन होले यूनियन संबलपुर को हराई फर्स्ट फाइनल ले अनुगुण ओ ले होतला। जी जी जी, बिल्कुल। लास्ट वन, कौन सा वो बड़ा टूर्नामेंट आप जिसको आपने लिस्ट पे जगह देना चाहेंगे? लास्ट रे हम केंद्रापड़ा गोटे टूर्नामेंट हुए हमरो ग्रीस फील्ड बोली तार ऑर्गेनाइजेशन बहुत भलो करंती और बहुत लोग एडी होंती खेल देखियो। जी। 5 टूर्नामेंट का आपने नाम लिया। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में हम बात करेंगे। क्या इस टूर्नामेंट का खासियत है? बागड़िया कप आपने मिस किया था, लेकिन बागड़िया कप मैंने जब अटेंड किया था बहुत बढ़िया माहौल बना था वहां पे। और मैं वर्ल्ड कप का नाम दे चुका हूँ बागड़िया कप को, क्योंकि लोगों का जो तहताब है वो सबसे ज्यादा रहता है। और ऊपर से वो पैविलियन से जब आप नीचे की तरफ आते हैं कुछ अलग सा फीलिंग होता है। और साउंड सिस्टम, पिच, आउटफील्ड काफी लाजवाब है। बागड़िया कप के बारे में आपने भी बताया सबसे पहले, लेकिन थोड़ा सा सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में बताइए। क्या आप इस बार सुकुने प्रीमियर लीग खेले थे? जे मु तो 2 वर्ष लानी खेले माने मते कहि जंदी किंतु मु जाई पारि नै केना हमर निज टीम रो मैच रहि जाय मु जाई पार नथली ए वर्ष किंतु माने 100% जीवी। जी। क्या सुधार और क्या ऐड करना चाहेंगे? आपने जितना सोशल मीडिया पर देखा है, क्या खास बात रही है सुकुने प्रीमियर लीग का? और क्या करना चाहिए और भी बेहतर हो सकता है? सुकुनैर विषय रे कहबी ता ऑर्गेनाइजेशन प्रथम ताकर सबुठ भलो ऑर्गेनाइजेशन कहना से प्लेयर मानकू जो टीम माने बाहर आसंदी मु तो माने जानि नै सुनि छी जो प्लेयर माने बाहर आसंदी ताको भाई माने से निज पिला भाबी की माने ताको प्लेयर मानकू बहुत सम्मान दियंती
ଆଉ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ବହୁତ ଭଲ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରଫି ରଖନ୍ତି। जी, ଆଉ କଣ यही କହିବି। खास बात है। बड़ौदा टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वहां पे भी लोगों का माहौल बहुत कमाल का रहता है, खचाखच भरा हुआ वो मैदान हमने देखा था इस साल। जिस हिसाब से कमांडो 11 और स्टार 11 जगतसिंहपुर के बीच में मुकाबला हुआ था। क्या बताना चाहेंगे बड़ौदा टूर्नामेंट के बारे में आप? ହଁ ବଡବୁଦା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳୁଛି। जी। ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରୁ ହାରିଗଲୁ ଆମର ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଲାଷ୍ଟ जी। ବଲରେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ 6 ରନ୍ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଥିଲା, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବାଡେଇଥିଲେ। हम्म। तो अच्छा लगता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और बार बार खेलना चाहेंगे आप उस टूर्नामेंट पे। ହଁ ବହୁତ जी। ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର। ବହୁତ ମେନ୍ ହଉଛି କ୍ରାଉଡ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ପଡିଆ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପଡିଆରେ। जी। आ, ये आपने बताया टॉप 5 टूर्नामेंट का जो आपको ज्यादा बेहतर लगा है और उनका ऑर्गेनाइजेशन या फिर पिच हो, आउटफील्ड हो, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक एक खिलाड़ियों का नाम लेना है और फटाफट आपको लेना है। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन आप किसको मानते हैं? मेरे को पता है कि आप है फियरलेस बैट्समैन, लेकिन आप आपका नाम नहीं ले सकते, दूसरा का नाम लेना होगा। फियरलेस बैट्समैन जो ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग कर। अजर। अजहर। एक्यूरेट बैट्समैन, मतलब जैसी गेंद वैसी शॉट। रूम मिले सुमन तो भाई। कट लगाना, पुल मिले तो शॉट मिले तो पुल लगाना, उस किस्म के बल्लेबाज कौन? सुमन भाई, सुमन भाई। सुमन भाई। एक्यूरेट बॉलर, टप्पा को पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं। पुरेड बोलर ଆମର କୋଶଳା ରାଜୁ। कुशवा राजू। बेस्ट फिनिशर, आप भी फिनिशर रह चुके हैं, लेकिन किस फिनिशर का नाम याद कीजिए आप? बेस्ट फिनिशर चिन्नू भाई। चिन्नू भाई, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम चेंजर प्लेयर, गेम चेंजिंग नॉक उन्होंने बहुत बार खेले हैं और जब आते हैं मुकाबला फंसा हुआ है, लेकिन वो आके मुकाबला को जिता लेते हैं। उस किस्म का खिलाड़ी का हम लेना चाहेंगे नाम। ବୋଲର ହେଲେ ଚଳିବ। बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, जिसका भी आप नाम ले सकते हैं। ଆମ ଟିମର ବିଟୁଲ ଭାଇ। जी बिल्कुल। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो बतौर ओपनर बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत ज्यादा रन भी बना चुके हैं, बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं। किसी भी टीम से आप ले सकते हैं, मतलब उस टीम से एक, इस टीम से एक, लेकिन दो सलामी बल्लेबाज होना चाहिए। ओपनर ସବୁଠୁ को ମୋ चुनना है। ମତେ ରତ୍ନ ଭାଇ। और एक बार बताइए। असलम असलम असलम। खान। जी, असलम खान। और एक बल्लेबाज? सत्यवीर पप्पू भाई। पप्पू भाई। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपने बैठाया है। मतलब ये कि आके मतलब वो छक्का चौका, असलम खान तो रुकते नहीं है और पप्पू भाई के पास वो क्लास है, मतलब सिंगल डबल चुराने की। बहुत बढ़िया आपने वो ओपनर का नाम लिया सोच समझकर। बेस्ट विकेट कीपर, विकेट के ନନ୍ଦ पीछे ଭାଇ। बहुत बढ़िया काम करते हैं। ନନ୍ଦ ଭାଇ, ନନ୍ଦ ଭାଇ। चिन्मय परिड़ा नंदा भाई का नाम आपने लिया, बहुत बढ़िया विकेट कीपर। मतलब विकेट के पास पे तेज, मतलब जो रफ्तार वाली गेंद को भी वो विकेट के पास खड़े होकर पकड़ते हैं और काफी लाजवाब बल्लेबाज भी हैं और काफी प्रभावित किए हैं चिन्मय परिड़ा ने। थैंक यू सो मच नंदा भाई। बेस्ट पेस बॉलर, जिसके पास गति हो। बेस्ट पेस बोलर जी। आईपीएल पे हमने उमरान मलिक का बहुत तारीफ करते हुए सुना है, लेकिन गली क्रिकेट पे वो तेज गेंदबाजी कौन सा गेंदबाज करता है और आपने उनको बहुत करीब से देखे हैं। ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବେଷ୍ଟ। थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन ऑप्शन के तौर पर कुछ खिलाड़ियों का नाम भी बता सकता हूं कि संबलपुर पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्पीड रहता है पिलाड़ू के पास। जब आप थोड़ा सा कमांडो 11 के
टीम पे आएंगे तो फिर शायद गणेश प्रधान सबसे तेज डालते हैं, या फिर तपन तपन एक खिलाड़ी थे जो तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। यूनिट 9 पे हम जब भी देखे हैं में भी मुन्नी ने जब तक गेंदबाजी किए हैं उन्होंने बहुत तेज गति के साथ गेंदबाजी किए हैं। तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? बेस्ट ଆପଣ जो ऑप्शन देले तीनटा भितर पिलाडू भाई बहुत पेस पकांदी। जी, पिलाडू, कट्टर, आजकल कट्टर का बोलबाला है, और पिलाडू भाई का आपने नाम लिया और वो ज्वाइन कर चुके हैं, और थोड़ा सा खुश भी रहेंगे आपके ये फैसला से। कट्टर स्पेशलिस्ट, बेस्ट कट्टर बॉलर। बेस्ट कटर बाया। बाया, बाया, जी बिल्कुल। और कालिया नाना ने यहाँ पे लिखे कि ओबामा का नाम शायद हमने मिस किया, ओबामा के पास भी बहुत सारे गति है, गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। बहुत पेस बोलर अछंती, ओबामा भाई अछंती, हमर टीम रो बिटुल भाई बहुत एक्स्ट्रा पेस पकांदी, हमर पिलाडू भाई तो पकोचंती। एवर ए सीजन में हमर रिलायंस टीम रे गोटे कान्हू भाई बोली बहुत खेलंती, से बहुत एक्स्ट्रा पेस पकांदी, बहुत बोलर जी अछंती एक्स्ट्रा पेस पकांदी। जी, कट्टर बॉलर के नाम पे अपने MKR का नाम रखा, मनोज कुमार राउत का। और मेरे विचार पे कट्टर मास्टर मनोज कुमार राउत, मैजिकल राउत। स्ट्राइक रोटेट करना क्रिकेट का एक नियम है, बड़ा पहलू है। और स्ट्राइक रोटेट बल्लेबाज जो सिंगल डबल के ऊपर ज्यादातर भरोसा जताते हैं, आपके विचार पे कौन सा वो बल्लेबाज है जो सिंगल डबल बहुत आसान तरीके से चुरा सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट बेहतर तरीके से कर पाते हैं? किस बल्लेबाज का नाम तीन लेना जण माने चाहेंगे? कहि, तीन जण माने कहि, बोल दीजिए। श्रीनिवास प्रधान, श्रीनिवास प्रधान, आम नंद भाई सिंगिर, जी, आम टीम रो अमित नायक। अमित, अमित नंदा, और अपने श्रीनिवास का नाम लिया। चलिए, सेफ हैंड फील्डर, मतलब फील्डिंग पे उनका एक अलग पहचान है। जब मैदान पे होते हैं वो छलांग लगाते हैं कैच पकड़ने के लिए, बाउंड्री रोकने के लिए संपूर्ण समर्पण देते हैं। तो फील्डर के तौर पर आप किसका नाम लेना चाहेंगे? जबरदस्त फील्डर होना चाहिए। जबरदस्त फील्डिंग सेमिति बहुत भल भल फील्डर अछंती, किंतु ए सबुठ भल मते फील्डिंग लगे जे कि हमर चिन्नू भाई रो है ना। जी से फील्डिंग जदी पॉइंट रे छका से पूरा लंग अप दौड़ी दौड़ी से पॉइंट रे क्या धरने, बहुत एक्टिव। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डर है। बेस्ट डेथ बॉलर, मतलब आखिरी समय पे आखिरी ओवर पे जो आके गेंदबाजी करे, विकेट चटकाए, डेथ बॉलर का नाम किस गेंदबाज का चुनाव करेंगे आप? डेथ बॉलर हम हम टीम रो कमलाकांत भाई 6 रु 6 ब्लॉक मार दो। जी जी, कमलाकांत, मैंने नाम सुना है। और बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, और डेथ पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये आपका मानना है। और जरूर बाबा 11 इस पे विश्वास किया है, निवास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि स्किल्स के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट अलग है और टेनिस क्रिकेट अलग है। यहाँ पे बल्लेबाजी, ताकत आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ टेम्परमेंट और क्लास होना चाहिए। आपके विचार पे हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए टेनिस क्रिकेट पे जब आप बैटिंग करते हैं? ये प्रथमे बोलर सब प्राय कटर ही पकांदी, मैंने जो टीम रे जीव 5टी कटर ही दिबे सब हाथ को ही मार करे पड़े, कहना लास्ट मोमेंट रे हाथ को मार करले गोटे बैट्समैन यदि हाथ को मार करी खेलुदिबो बहुत भलो खेलिबो, कहना जानि परियो बॉल टे लेफ्ट रो पड़ियो कि अप रो पड़ियो, सेति में प्रिपरेशन ही खेली परियो। आ गोटे कथा कहि मन रे केबे इगो रखिबेनी, जते आपण भलो बड़ प्लेयर हे दंतु मन रे जदी आपण इगो आसला आपण खेल ऑटोमेटिक पळेबो। जी जी जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताया। और कल जब भी मैंने आपका पोस्ट किया था तो नीचे किसने यूट्यूब पर कमेंट किया कि मतलब आपके अंदर कोई ईगो नहीं है। आपके बल्लेबाजी पे शायद मैंने देखा है ईगो, आप जब बल्लेबाजी करते हैं वो ईगो नजर आता है, लेकिन एक इंसानियत के रूप पे आप एक कमाल के इंसान है, जो मतलब अब जब भी आपको मैं देखता हूं तब आप मुस्कुराते हैं। और ये सबसे बड़ा जीत होता है, जिंदगी का जीत जो है वो आपने जीता है।
बालिया राजा कुछ लिखे हैं, और जरूर बालिया राजा एक कमाल के खिलाड़ी हैं। और थोड़ा सा क्या लिखे हैं कि बुद्धा भाई अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बारे में एक डायलॉग होना चाहिए, तो मैं जरूर वो डायलॉग, हमारा शायरी राउंड है और मैंने शुरुआत भी नहीं किया था आज, मैं बहुत बिजी था जिसकी वजह से मैं भूल भी गया। वो कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हाथुड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। और जब आप आपकी टीम पे हम देखते हैं तो फिर वो हाथुड़ा का चोट शायद आपके कप्तान आपको देते हैं, लेकिन आप वो भगवान का रूप धारण करते हैं आपकी टीम के लिए। ऐसा और एक बार लिखा गया है कि वो खुद ही तय करेगा मंजिल आसमान की, कि वो खुद ही तय करेगा मंजिल आसमान की, परिंदों को नहीं दिया जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो कदम हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने का। तो जो आसमान छूने की काबिलियत रखते हैं उनको गिर जाने का कोई परवाह नहीं होता है, और जो जिसने भी लिखा है वो सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अनिरुद्ध भाई, और काफी बहुत बढ़िया तरीके से आप ये एपिसोड को ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं, और थोड़ी देर आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। और इसी बीच हमारे जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको बता देना चाहूंगा, बाबा 11 से अनिरुद्ध स्वाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूनिट 9 कमांडो 11 बाला बाबा क्रिकेट टीम, ऐसे बड़े बड़े टीम के साथ ये जुड़ चुके हैं। अपनी बल्लेबाजी के साथ इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। अब 2.5 मिनट का समय है, और जो भी हमारे ऑडियंस है वो अपना सवाल रखना चाहते हैं वो फटाफट रखिए, और मैं फटाफट क्वेश्चन रखूंगा अनिरुद्ध के सामने। पहला सवाल ज्ञाना ज्ञाना ने पूछा है, वन क्वेश्चन फॉर माई साइड टू आस्क अनिरुद्ध भाई, बेस्ट इनिंग्स पर बड़भद्रपुर, बड़भद्रपुर टूर्नामेंट पे आपका बेस्ट इनिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं ज्ञाना भाई। देखो प्रथम बलभद्रपुर कथा कहूँ, से वर्ष आम रनर्स अप होइतिलु जी। आम टीम रे माने भल प्लेयर, यंगस्टर बहुत भल भल प्लेयर खेलुतिले, किंतु एते बड़ नुह कि जे कि नामी दामी बोलर बैट्समैन के बोलर की खेलुतिले। आम टीम रो चारोटी बैट्समैन खेलुतिले, जे कि लुलन भाई रो मोर जी। आउ आम इच्छापुर आम पट्टामुंडे बंटी गोटे पिला थिले से खेलुतिला, मुन्नाल भी गोटे पिला थिले, भुवनेश्वर मुन्नाल भाई, मुन्नाल मुन्नाल राइट। चारि जण आम बैट्समैन ही खेलुतिलु। आम टीम रे बैट्समैन के आमर अमित भाई खेलुतिले, अमित भाई आम टीम रो 5 जण भी भल बैट्समैन खेलुतिलु। आउ सब माने यंगस्टर पिला माने नुआ पिला सब चांस करथिले, बहुत भल खेलुतिले। बाया भी बहुत भल पकेइतिला, हमर जो जमरा बाया निकरी कोटू ए वर्ष खेलुतिला, से बहुत भल आपने पकेइतिला। आपने कितना रन बनाया था बड़भद्रपुर, जिसके बारे में सेमीफाइनल जानना में आता था, सेमीफाइनल रे गोल्डन सहित थिला हमर, जी। तांकर बहुत भल भल पिला खेलुतिले, किंतु चारि जण सेमीफाइनल आसी खेलले। हमर चिन्नू खेलले, बाबुनी खेलला, अजर भाई खेलले, इरफान भाई खेलले, चारि जण आसी गोल्डन टीम सहित जेतले मिसी गले, मैंने बहुत ओडिशा एमितिया टीम थिला कि जे कि सारा ओडिशा टीम को हराई देबे, बहुत जी। भल टीम थिला। आमे भाब जे कि हम लुलन भाई कहले कि कहले खेल कथा जा हो जो, किंतु मन रे के भय रखिबनी। सेमीफाइनल मैच एते बड़ स्टेज रे एते बड़ आमे एते बाटा आसिले, आ गोटे मैच कष्ट कला फाइनल जीवा, सेमिति फाइनल पई तो हम प्रिपेयर नथिलु, कहले हम निज गेम निजे खेल। जी। जे कि हम प्रथम बॉल ले मुन्नाल भाई छक्का मारले, सेकंड बॉल आउट हो गेले, हम्म। तापर मते देइतिले बैटिंग, जे मु बहुत माने ये इनिंग्स टा मोर लाइफ रो सबुठ भल इनिंग्स मु खेलितिली। जी जी जी। अ, अ, सेनापति कलापत्रु ने ये सवाल पूछा है आपसे कि उत्कल केशरी राउत जगन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। ता विषय रे कोन कहू, सारा ओडिसा रो से जे कि गोटे समस्त हम फेवरेट जाको पचारिबो फेवरेट बैट्समैन से जगन नाही न। जी जी। हम केंद्रापड़ा माने केंद्रापड़ा जदि टेनिस क्रिकेट जानी जंती ताले जगन भाई, जगन जी भाई। जी। हुर्सिकेश मलिक ये सवाल पूछे हैं कि पाइक माल पे बहुत बढ़िया बैटिंग आपने किया था, वहां का खाना कैसा था। देखो पाइक मारले प्रथमे मु जले खेलिली, मते सुमंत भाई आ पुओ भाई बहुत दी जण बहुत सपोर्ट करथिले, जी आ नकियाना भी बहुत सपोर्ट करथिले, बहुत कथा कहिथिले जे कि प्रेशर रे तू
तू एकाटिया ही खेली पारू कहीं सीजन में तू भल खेलुचु आउ सुमंत भाई बहुत मते माने बहुत मोटिवेट करथिले कि जे कि अनिरुद्ध अछि माने मैच जीतबा। जी। तो वहां का खाना कैसा था, पसंद आया आपको? हाँ पाई बहुत भल खेल बहुत भल ऑर्गेनाइजेशन करथिले आउ खाइयो भी देथिले बहुत भल लागथिला। जी। संग्राम बिस्वाल का ये सवाल आया है कि टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बताइए आप। यार मोस्ट हैंडसम प्लेयर दी जण गोटे होचंती अजर भाई और टीपू सुल्तान जी। आ बहुत बड़ आप सेपटे सिक्किम एरिया भद्रक एरिया बहुत बहुत ना ताकर बहुत बहुत भल ऑलराउंडर। जी। बैकुंठ सर जो बागेड़िया बीसीए का मेंबर है, और उन्होंने आपको बहुत सारे प्यार भेजे हैं और ये प्रस्ताव रखे हैं कि आने वाला जो सीजन रहेगा बागेड़िया कप, जब फिर दोबारा हमारे सामने आएगा, जरूर हम अनिरुद्ध को देखना चाहेंगे उनके मैदान पे। मोर अनदर तो सब क्वेश्चन। इच्छा जी। कौन कुंदु। ना देखो बागेड़िया कप आपण थरे इंटरव्यू मु देखुଥିଲି आपण कहिथिले जे कि बागेड़िया कप आमे सबुठु भलो टूर्नामेंट जे कि वर्ल्ड कप रो आख्या ताକୁ ଦେଇଥିଲେ जे कि टेनिस रो जी जी एना जी समते जहाको भी जो ओनर भी पचारिबे जो प्लेयर को पचारिबे प्रथम ही बागेड़िया कप ही ना कहउछंती जी जी एते भलो टूर्नामेंट को मिस करथिली बहुत। जी। बिल्कुल, हमने सिर्फ सुकुने प्रीमियर लीग, बाघड़िया कप या फिर ऑल स्टार के बारे में सिर्फ हमने चर्चा नहीं चर्चा किया था। पिछला साल इसके बारे में हमने जमकर चर्चा की, लेकिन इस साल बहुत टूर्नामेंट हुआ है और कम से कम 70 से 80 टूर्नामेंट ऐसा है जो बाघड़िया कप और सुकुने प्रीमियर लीग का लेवल का टूर्नामेंट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाजवाब है। जैसे मैं मयूरभंज गया था, मयूर कप काफी बढ़िया टूर्नामेंट था। लॉकी पुसी टूर्नामेंट के बारे में बात करें, ऐसे तमाम टूर्नामेंट है। हमारे तिरतुल पाड़ेंदा पे जो टूर्नामेंट होता है, या फिर हम ये केंद्र क्या करेंगे तो याद ही नहीं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आपका आइडियल क्रिकेटर कौन? जब आप इंडिया टीम को देखते हैं तो फिर आप किसको देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था? आपका फेवरेट प्लेयर हम जानना चाहेंगे। ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଶିଖିଥିଲି ମତେ ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବିରାଟ विराट कोहली। କୋହଲି ମୋ ଫେଭରାइट प्लेयर। जी। विराट द रन मशीन कोहली, विराट द टर्न मशीन। शायद वो टर्न हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पिछले 2 साल से वो शतक नहीं जड़े हैं। आईपीएल भी थोड़ा सा ठंडा जैसा गुजर गया। फिर भी उम्मीद रहेगा कि विराट कोहली बैक इन फॉर्म, और क्योंकि इंडिया टीम का बैकबोन कहा जाता है विराट कोहली को, जरूर उम्मीद रहेगा कि आपका जो सुपर हीरो है चीकू भाई हमारे फॉर्म पे आए और रन बनाए भारतीय टीम के लिए। आईपीएल पे फेवरेट टीम कौन सा टीम को आप सपोर्ट करते हैं? ବାଙ୍ଗଲୋର। जैसे विराट कोहली आपका पसंदीदा खिलाड़ी है, तो जरूर आप आरसीबी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सेमीफाइनल पे आके हार मिलना, और जिस हिसाब से आरसीबी हारा, क्या थोड़ा सा दुख दर्द महसूस हुआ आपको? और थोड़ी देर लेके जी। आरसीबी जब हारा था सेमीफाइनल मैच पे राजस्थान के खिलाफ, क्या कमियां आप निकालना चाहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम पे? कहां पे वो गलती कर रहे हैं, या फिर कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म शायद उनका सिरदर्द बना हुआ है, या फिर गेंदबाजी और भी बेहतर करना पड़ेगा? क्या बताना चाहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆମ ଟିମର ବାଙ୍ଗଲୋର ଟିମ କଥା କହୁଛି 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲ ହିଁ ଯିବେ ହାରିବ जी जी ତାର ମାନେ 14 ବର୍ଷର ଏଇଟା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମେନ୍ ତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ହାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। जी ବୋଲିଂ जी ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଯିଏକି ହସନ ଏ ବର୍ଷ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ जी ବୋଲିଂ ଲାଇନ ବ୍ୟାଟିଂ लाइन बहुत बढ़िया। जी। तो बॉलिंग पे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, अनिरुद्ध स्वाई का मानना है। अब थोड़ा सा आपके पर्सनल जीवन के बारे में हम जानते हैं कि क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है जो करना पसंद है अनिरुद्ध को, और क्या क्या करते हैं आप?
ମତେ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ जी ବସି ଖଟି କରିବା। ଆଉ ମୋର ଲାଇଫରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆଉ जी। କ୍ରିକେଟ ହିଁ ମୋର ମାନେ ପେସନ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। और ଯଦି कुछ मतलब ବର୍ଷା ବି घूमना। ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ପଛେ ଘରେ ଖେଳିବି କିନ୍ତୁ खेଳିବି। जी नहीं, जैसे कि घूमना, पिक्चर देखना, या फिर और कोई अनदर गेम, गाना सुनना, फुटबॉल। गाना सुनना। गाना सुनना, सॉन्ग्स आपको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है अनिरुद्ध को? मते ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ କି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ଦେଲେ ଚଳିବ। ओडिशा टेनिस क्रिकेट अब यहाँ पर आ चुका है, जहां पे खिलाड़ियों को थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा फिटनेस लेवल को हाई लेवल पर लेकर आना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? क्या जंक फूड को थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए, डाइटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए? इस सारे चीजों के ऊपर आपका क्या राय रहेगा? फिटनेस मोस्ट इंपोर्टेंट। ଫିଟନେସ୍ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ହିଁ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ जी ଭଲ ଫିଟନେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ରନିଂ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। जी ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ରନିଂ ମାରିବେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର, ସବୁଠୁ जी। ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏ और एक ସିଜନରେ सवाल ରनिଂ, लेता हूँ। ଆଜ୍ଞା। जी, आपने फिटनेस के बारे में बताया कि रनिंग करना, जिम ज्वाइन करना, खाने के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। हमारे जितने भी गली क्रिकेटर्स हैं, उनको थोड़ा सा और भी मेहनत करना पड़ेगा, जहां पे क्योंकि हमने देखा है अनिरुद्ध भाई की आप एक दिन पे ना मतलब 2 टूर्नामेंट खेल लेते हैं, या फिर लगातार 4-5 मैचेस खेल लेते हैं। मतलब फिटनेस लेवल जिसके पास होगा नहीं, वो शायद नहीं खेल सकता है ये इतना मैचेस। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सत्य दास ने पूछा है कि भाई केंद्रापड़ा पुरुषोत्तमपुर टूर्नामेंट और उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। पुरुषोत्तमपुर। ପୁରୁଷ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ जी ଏପଟ ଏରିଆରେ ଏଠୁ ଘର ପାଖ, ଏଠୁ ପାଖ ହବ, ଭଲ ଖେଳ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ जी। ଖେଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ। चलिए, ଲୋକ नेक्स्ट ଅଡ଼ିଏନ୍ସ क्वेश्चन ବହୁତ आपके ହୁଅନ୍ତି। सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आपका फेवरेट शॉट आपका। डाउन द ग्राउंड। डाउन द ग्राउंड, हवाई फायर, अनिरुद्ध का बल्ला, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का लगाना आपको पसंद है। गेंदबाजी जब आप करते थे तब आपका स्टॉक डिलीवरी क्या था? क्या वो ऑफ कटर या फिर लेंथ डिलीवरी? कीपर। जी। जैसे हम वो ड्यूज बॉल पे बात करते हैं कि न्यू बॉल या फिर ओल्ड बॉल, क्या टेनिस बॉल पे भी वो नई गेंद और पुरानी गेंद पे कुछ फर्क होता है? जब आप बल्लेबाज हो तो फिर नई गेंद पे ज्यादा सेटल नजर आते हैं, बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, या फिर पुरानी गेंद? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲି, ବ୍ୟାଟିଂ ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି जी ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଯାଏ, ବହୁତ ଜୋରେ ବୁଲାଏ, ବାଜିକି ଛକା ଫକା ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ନଥିଲା, ଖାଲି ବୋଲିଂ ହିଁ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି जी ନା ବହୁତ 4ଟା 5ଟା ବଲ୍ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ପାଏ, ଆଉ 4ଟା 5ଟାରୁ ବି 2ଟା 3ଟା ଛକା ମାରିଦିଏ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଲନ ଭାଇ ମତେ ନେଇ ଖେଳିଲେ ବାହାର ଟିମରେ, ଦେଖି ଉପରେ ଓପର ଡାଉନରେ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ जी ମାନେ 2ଟା ୱିକେଟ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଥାର୍ଡ ଡାଉନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। जी କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଖେଳିଲି, 2 ବର୍ଷ ଓପନିଂ ବି ଖେଳିଲି, ଆଉ ଓପନିଂରେ ହିଁ ମୁଁ 4ଟା 100 ମାରି, 3ଟା 100 ମାରିଛି, ଗୋଟିଏ 100 କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହିଁ ମାରିଛି। ନୂଆ ବଲରେ जी ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରୁଣା ବଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନୂଆ ବଲରେ ଖେଳ ହେଲେ କଣ ଟିକେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଫାଇଦା ମିଳେ, ଆଉ ଯୋଉଠି जी ପାୱାର जी। ପ୍ଲେ ନଥାଏ ଟିକେ पावर ଦେବାକୁ पड़े। सही फरमाया आपने, जहां पे पावर प्ले नहीं होते वहां पे पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नई गेंद हो पावर प्ले पे आप पावर हिटिंग करना चाहेंगे। यू आर रणबीर, ये सवाल पूछा है रणबीर, जो रनों का वीर मैंने उनका नाम रखा था, काफी अच्छे प्लेयर है, कि इस साल बेना भाई के घर के पास उनका होम ग्राउंड पे जो मैच हुआ था उसके बारे में अनिरुद्ध क्या बताना चाहेंगे आप? ଆରେ ସିଧା ବଲ ହଉଥିଲା, ସିଧା ବଲ ହଉଥିଲା, ମତେ
सीधा बॉल ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସିଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ जी ସେ ଗୋଟିଏ ପଡିଆ ହିଁ ମତେ ସାଥ ଦେଲାନି ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳି ପାରିଲିନି ରଣବୀର ଭାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। जी जी। ये जो कटर और आपने जैसे बताया कि सीधा गेंदबाजी मतलब वो स्विंग होना नहीं चाहिए, क्या ये सब सारी चीज हो आपको थोड़ा सा देखिए, कटर है तो आपको कटर को अलाउ कर दीजिए, क्योंकि गेंदबाज के लिए तो कुछ होना चाहिए। आप जब सिर्फ हिट द टेक गेंदबाजी करेंगे, लाइन सिर्फ आपका सीधा होना चाहिए। मेरे विचार पे ये जो एक टेनिस क्रिकेट है, हम तो देखिए पहले राउंड ऑन फिर उसके बाद चोक, इस पे आ चुके हैं। पहले तो राउंड आर्क में आपको बार बार गेंदबाजी करना चाहिए, आपका हाथ पूरी तरीके से घूमना चाहिए। फिर उसके अंदर देखिए सीधा गेंदबाजी, कटर गेंदबाजी, कटर होता है तो नो बॉल का निर्णय दिया जाता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या गेंदबाज के लिए कुछ एडवांटेज होना चाहिए कि कटर अलाउ करना चाहिए हर टूर्नामेंट पे? ଦେଖନ୍ତୁ କଟର ତ ଏବେ ସବୁଆଡେ ଖେଳ ହଉଛି जी ସମସ୍ତେ ବି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କି କଟର କେହି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସିଧା ବଲ୍ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ କି ସିଧା ବଲ୍ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ ତ କଟର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାନେ 100ରୁ 70 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସିଧା ବଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ जी କଟର ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝି ହଉନି ଆଡକୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସାଡକୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କି ଆଉ जी ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ ସିଧା ବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହିଁକିନା କୋରେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଯେ କି ତାଙ୍କର ବବଲୁ ଗାଁ ଡବଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର 5ଟି ବୋଲର ବହୁତ କମାଲକା ବୋଲର जी जी ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ସିଧା ବଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ସବୁଆଡେ ସିଧା ବଲ୍ ହେଇଗଲା। जी। तो आ, मेरे विचार पे होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो सीधा करना चाहते हैं या फिर कटर का टूर्नामेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया शायरी लिखे हैं यहाँ पे, इट्स मक्खन 77 क्रिकेट लवर। उन्होंने जो लिखा है मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि अनिरुद्ध उसका नाम है, फिनिशर उसका काम है। क्या बात है! अनिरुद्ध उसका नाम है, फिनिशर उसका नाम है, बाबा इलेवन का शान है, और अपन के हिसाब से खेल खत्म करना इसका पहचान है। अरे क्या बात है, अरे आपने क्या वाह, शायरी लिखा है मक्खन भाई। फिर थोड़ा फटाफट उसको बताता हूं कि अनिरुद्ध उसका नाम है, फिनिशर उसका काम है, बाबा इलेवन का शान है, अपन के हिसाब से खेल खत्म करना इसका पहचान है। क्या बात है मक्खन भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप शायरी भेजते जाइए। और एक सवाल लेना चाहूंगा प्रमंजन 435 बुद्धा दवा भाई, कौनसा और नाइट मैच के बारे में उन्होंने मेरे को सवाल पूछा है। देखिए कंसार अब बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था और बहुत मजा आया आपके साथ, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। लेकिन हम अनिरुद्ध के साथ आज जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर जाऊंगा, डॉगआउट मेमोरीज। डॉगआउट पे आप जब होते हैं, बाबा इलेवन के डॉगआउट पे क्या माहौल रहता है, कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? मजाक मस्ती वाला जो माहौल होता है, कौन ज्यादा मजाक मस्ती करता है, एंटरटेनमेंट? ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମଜାମସ୍ତି ମୁଁ ହିଁ କରେ ଆମର ରାଜେଶ ଭାଇ ଖୁର ଖୁର ଭାଇ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଖୁର ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ଅଧିକା କରେ ଆଉ ବିଟୁଲ ଭାଇ 3 ଜଣ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଅଧିକା ମଜାମସ୍ତି କରୁ। जी बिल्कुल। थोड़ा सा आपके ओनर के बारे में, बाबा इलेवन ओनर, क्योंकि ओनर का बिना टीम एकत्रित होना और टीम को आगे की तरफ लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा आपके जो ओनर रहे, जो प्रोफाइटर रहे, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और क्या प्यार भेजना चाहेंगे बाबा इलेवन के ओनर को? देखिए प्रथमे से ଆମର ପ୍ରତୀଶ ଜେନା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ ର ଓନର जी ଏ ସିଜିନ ସିଏ ବହୁତ ବଡ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟବାର ପଟୁ ଟିମ ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଟେ ଖେଳୁଥିଲି ବାଲାବା ଟିମରେ ଖେଳୁଥିଲି जी ଏପଟେ ଛୁଟିରେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଯଦୁପୁରରେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଏ ମତେ ଏଇ ସିଜନରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ जी ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଖେଳିବା ଖେଳର ହାର ଜିତ ଅଛି କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ହାରି ସାରିଲା ପରେ
द्वितीय कथा सब से मोटिवेट करते कि आम खेल हार जीत अच्छी तुम प्रथम एमती खेल खेल को खेल भाया खेल जे कि मैच क्लोज जाऊ केवे वन साइड भाया हारन से हिसाब से अधिक किंतु एक बढ़िया ओनर। क्रिकेट वानी की तरफ से भी बाबा इलेवन के ओनर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा इलेवन जैसा एक टीम को क्रिएट किया और कम से कम 12-15 खिलाड़ी को लेके आपने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है बाबा इलेवन के। जब खेल को उठाकर हम देखेंगे, और मैंने भी उनके साथ पर्सनली बातचीत किया हूँ, काफी शानदार इंसान है और काफी दिल के अजीज रहेंगे मेरे हर समय। बहुत बढ़िया इंसान है और ऐसे ही आप कंटिन्यू कीजिए बाबा इलेवन टीम को और बड़े बड़े टूर्नामेंट अटेंड करने की कोशिश कीजिए, जैसे सुकुने प्रीमियर लीग, बागड़िया कप, लकी बसी कप। शायद आपका टीम जब वो बड़े मंच पे पंच लगाएगा, निश्चित तौर पर बाबा इलेवन का नाम बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एसपीएल परिवार यानी कि सुकुने प्रीमियर लीग के परिवार से आपको बहुत सारा प्यार उन्होंने भी भेजे हैं और थोड़ा सा वो रोशनी डालने के लिए मजबूर किया है आपको कि एसपीएल के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे। जिस हिसाब से उनका हर खिलाड़ियों का बैनर लगाते हैं, जब आप मैदान में प्रवेश करेंगे आपका बैनर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस हिसाब से वो सोशल मीडिया पर कैमरा लेकर आए, ऑनलाइन स्कोरिंग को बहुत मायने रखा और रिप्ले भी आपको नजर आ रहा था। घर बैठ के आप जैसे इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, उस प्रकार का टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, हैंड्स ऑफ यू एसपीएल परिवार। लेकिन शॉर्टकट पे आप क्या बताना चाहेंगे सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में? जी देखो प्रथम सुकुन माने गोटे एत भल टूर्णामेंट ता विषय कि कमी कि ना से टूर्णामेंट रो किसी कमिया तुम खोजी पाइबनी। जी प्रथम आमर एपट एरिया जगतसिंहपुर हो कि कटक हो से मझिया मझी जाऊँगी सुकुन जी कि सबुठ देखो थे तो कहली सब भल टूर्णामेंट आम एपट एरिया सुकुन सेपटे बागड़िया सब चलिए भल टूर्णामेंट। चलिए, थैंक यू सो मच बागड़िया बीसीए क्लब और एसपीएल परिवार। आप लोग ऐसे ही शानदार टूर्नामेंट और कड़ी मेहनत करके टूर्नामेंट को आप जारी रखिए और भी बेहतर खिलाड़ी उस टूर्नामेंट पे योगदान दे और भी आपका टूर्नामेंट बहुत ऊपर की तरफ जाए, ये हमारा विशेष रहेगा। और अनिरुद्ध की तरफ से भी आपके टूर्नामेंट के लिए बेस्ट विशेष उन्होंने भी भेज चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आपके मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। आपके माताजी और पिताजी, आपके फैमिली मेंबर्स क्या सपोर्ट करते हैं माताजी और पिताजी क्रिकेट खेलने के लिए? अरे बाबा खेल कहीं सपोर्ट ना। मो बापा अच्छा बर्तमान काश्मीर जम्मू काश्मीर अच्छा सीआरपीएफ आईएएस अच्छा जी जी माँ हाउस वाइफ। नाम जानना चाहेंगे माताजी और पिताजी का? माँ का ना हूँ रंजिता स्वाई, बापा का ना जी हूँ गौरंग चरण स्वाई। जी दी जन खेल केवे पसंद नहीं कहना जी आपण समस्त घर देखुवे जे कि से पिलार भविष्य में अनाती जे खेल कौन अच्छे खेल ते कौन किसी मिल चाकरी गोटे भल पाठ पढ़ चाकरी कर जे कि लाइफ सेटल हम से खेल तो केवे सपोर्ट नहीं। जी मुझे घर पलि आसे खेल। जी ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपका क्वालिफिकेशन मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है? जी मैं +3 कंप्लीट कॉमर्स केंद्रापड़ा ऑटोनॉमस कॉलेज। अनिरुद्ध सिर्फ सामने से दिखाई देते हैं कि ये मतलब ये सिर्फ क्रिकेट के लिए पहले मतलब बस जन्म हुआ है, लेकिन ये पढ़ाई भी ठीक ठाक कर चुके हैं। कॉमर्स स्टूडेंट है यानी कि दिमागी तौर पर बहुत फिट हैं और जो पढ़ाई है ना, जो क्वालिफिकेशन, इसका सबसे बड़ा श्रेय आपके माताजी और पिताजी को जाना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से आपने वहां तक पहुंच पाए। और देखिए क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, क्रिकेट पे भी आप कमाई कर सकते हैं। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे आप अपनी जगह बना सकते हैं जब आप बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। और यही तो हमारा जरिया है कि टेनिस क्रिकेट के जो युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले। और इस सीजन को हम जब उठाकर देखेंगे, आप एक युवा सितारा जो चमक रहा है, हर मैच पे चमक रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके मॉम डैड को
और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके माताजी और पिताजी को। और उन्होंने जो लड़के को पैदा किया है या फिर जन्म दिया है वो उड़ीसा पे तहलका मचा चुके हैं, और आपकी जो नाम को और भी ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, रोशन कर रहे हैं आपके नाम को। और आपका सपोर्ट मिलना चाहिए जरूर। ये वाला एपिसोड आपके माताजी और पिताजी को जरूर दिखाएंगे, और जरूर आज के बाद आपको वो सपोर्ट जरूर करेंगे क्रिकेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माताजी और आपके पिताजी को एंटायर क्रिकेट वानी फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं। और मुस्कुराते रहिए, आपके फैमिली के साथ आप हर समय खुश रहिए, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो इंटरनेशनल क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर, इंडिया या फिर इंडिया के जो बाहर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी सवाल आया। क्या रैपिड फायर राउंड, इस राउंड को बताया जाता है हैशटैग क्रिकेट वानी क्लास। फटाफट आपको सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि विराट कोहली का ओडीआई पे सबसे सर्वाधिक स्कोर कितना है? 183। चलिए, आपने ये आसान सा सवाल बता दिया। अब विराट कोहली का टेस्ट पे सर्वाधिक स्कोर कितना है? ऑप्शन दीजिए। 251, 254, 256। 254। पता चल गया कि आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट पे सबसे बड़ा पारी किस बल्लेबाज ने खेल रखा है? ग्लेन लारा। बहुत बढ़िया। मतलब आप सिर्फ गली क्रिकेट पे नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी बहुत अच्छी तरीके से गौर किए हैं। वर्ल्ड कप, पहली बार वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज, लेकिन वर्ल्ड कप कौन सा साल पे शुरुआत हुआ था? ईयर कौन सा था? 1973, 75। जी जी, राइट राइट। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया तरीके से हर सवाल का आप जवाब पेश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि भारत के लिए पहला 5 विकेट हॉल किस गेंदबाज ने लिया था? पहला 5 विकेट अंतरजातीय क्रिकेट पे, टेस्ट नहीं, वनडे नहीं, T20 नहीं, सबसे पहला। शायद उस समय टेस्ट क्रिकेट ज्यादातर चलता था। कपिल देव। यस राइट, कपिल देव। क्या बात है, हर सवाल का सही जवाब। आखिरी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, टेस्ट क्रिकेट पे सबसे बड़ा पार्टनरशिप किस 2 खिलाड़ियों के बीच पे भुना गया है? मतलब 2 खिलाड़ी मिलकर सबसे बड़ा पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट पे बनाया है। संगाकारा, जयवर्धन। क्या बात है, मेरे को अब तालियां लगाना पड़ेगा आपके लिए। और आप लोग भी प्यार भेजते रहिए, क्योंकि इन्होंने हर सवाल का जवाब सही दिया है। और निश्चित तौर पर जब मुलाकात होगा जरूर क्रिकेट वानी की तरफ से आपको एक सुंदर सा गिफ्ट में पेश करूंगा, क्योंकि अभी तक किसी भी प्लेयर या फिर किसी भी खिलाड़ी ने 5 की 5 जो सवाल था उसका सही जवाब नहीं दिए थे। पहली बार क्रिकेट वानी पे सेकेंड सीजन पे और एपिसोड 6 पर अनिरुद्ध ने हर सवाल का जवाब सही दिया है। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। थोड़ा सा आपका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। जब आप बल्लेबाजी करते हैं, हमने बहुत शायरी पेश किए हैं, और आज मक्खन भाई ने एक बढ़िया शायरी भेजा था जो आपको मैंने सुनाया। लेकिन अब मेरा बारी है, आप सुनेंगे और शायद आपको पसंद आए। वो कहते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहां हो आपका, खुदा करे सारा जहां हो आपका। उसके बाद ना ये सवाल समझते हैं ना ये जवाब समझते हैं, ना ये सवाल समझते हैं ना ये जवाब समझते हैं। केंद्रापड़ा एरिया पे जाएंगे, अनिरुद्ध को क्रिकेट का नवाब समझते हैं। नवाबजादे, केंद्रापड़ा का अन्ना अनिरुद्ध, जो रूथलेस बैटिंग करते हैं। जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। पसीना पे नहाने वाला खिलाड़ी अनिरुद्ध स्वाइन। उसके बाद खेल ताश का हो या फिर जिंदगी का,
कि खेल ताश का हो या फिर जिंदगी का, लेकिन अपना इक्का तभी जमाना जब सामने वाला टीम बादशाह निकले। चाहे सामने वाला टीम बादशाह हो, लेकिन बल्लेबाजी पे बाजीमात करते हैं अनिरुद्ध। कि गिनने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, कि गिनने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। ये क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। मेहनत किया है खिलाड़ी ने, जिसके वजह से आगे बढ़ते हुए हमको नजर आए हैं। वो कहते हैं कि लेरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। अनिरुद्ध साहब, बेहतर से बेहतरीन होने का तलाश करे, कि बेहतर से बेहतरीन होने का तलाश करे। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए उसे शीशे की तलाश करे, जो बाबा 11 के ओनर ने तलाश किया है। देखिए अनिरुद्ध अपना क्लास है। बाबा 11 के जितने भी खिलाड़ी वो बहुत खास है, और उनका ओनर इस टीम पे किया है निवास, और जहां पे अनिरुद्ध ने वो जीत का भेजा है संदेश। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस क्रिकेट वाणी फैमिली। अनिरुद्ध, आप ऐसे ही बल्लेबाजी करते जाइए और ढेरों रन आप बनाइए, रनों का अंबार आप लगा दीजिए, बाबा 11 को और भी ऊपर की तरफ लेकर जाइए। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे आप अपनी जगह बनाइए बतौर बल्लेबाज। आपका जो सीजन नेक्स्ट सीजन वो बेहतर से बेहतरीन हो, और आप लाजवाब बैटिंग करें, ये हमारा विशेष रहेगा भगवान के पास। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, कैसा लगा क्रिकेट वाणी लाइव पर पहली बार आप आए और हमारे साथ ये 1 घंटा का जो माहौल आपने क्रिएट किया, क्या बोलना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में? ना प्रथमे हम टेनिस जगत हम ओडिशा टेनिस क्रिकेट को जदि किए चिन्हई थाए ताले से बुधा भाई, तापरे हम सूरज कांति भाई और अंपायर बबुल भाई, 3 जन जो टोटाल टेनिस क्रिकेट ही माने रंग रूप बदली जाइए टेनिस क्रिकेट रो। जी आपण आपण कमेंट्री मते सब बहुत भल लगे। कौन कहि आपण विषय रे माने हाँ, आपण शो सवाल। को आसी भाई बहुत पिला माने अनै था जे कि बुधा भाई को शो को केतळे आसीबे, कहीं ना बुधा भाई को शो को आसी नहीं। बहुत बाहर पिला ही जानती चिन्हती जे कि ना ये गोटे भल प्लेयर हेतिबो निश्चित। जी जी जी। बुधा भाई हमने पिछला पिछला साल जब अनिरुद्ध अनिरुद्ध भाई, पिछला साल हमने जब भी शुरुआत किया था, तब हमको पता नहीं था कि हम सेकंड सीजन कर पाएंगे। लेकिन पिछला साल हमने 80 एपिसोड किया था, हर एक खिलाड़ी को हमने मौका दिया। लेकिन इस साल ना हमने सोचा कि जो खिलाड़ी आ चुके हैं शायद उनको थोड़ा सा हम लेट पर लेकर आएंगे, लेकिन इस साल खासतौर पर जो युवा खिलाड़ी, जो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब वो पर्दे के पीछे रहे हैं, उनको पहले सामने पे लेकर आते हैं, और जिन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले। और उनमें से आप एक अनिरुद्ध मेरे बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं, और बहुत मजा आया। और पवित्र भाई ने यहाँ पे, पवित्र नाइक जो हमारे इंग्लिश कमेंटेटर, पवित्र भाई माने से वार्ड को जो बने की कहबे जो टाइम रे ताको वाला के एमिति कहि परिबेनी माने ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे। जी उनका भी बहुत अवदान रहा है। रशीदुल ओहित सार का भी बहुत अवदान रहा है। तो ये हमारा एक प्रयास है उड़ीसा टेनिस क्रिकेट को कैसे आगे की तरफ हम लेकर जाएंगे। और एक डायलॉग विश्वजीत ऑफिशियल उन्होंने अनिरुद्ध के बारे में और एक डायलॉग अंतिम शायरी में आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं सोचा हूं इसको, कि अनिरुद्ध का बल्ला जब हल्ला बोला तब छक्का चौका का हुआ बौछार। कि अनिरुद्ध का बल्ला जब हल्ला बोला तो फिर छक्का चौका का हुआ बौछार। गेंदबाज चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन ये बड़े छक्का लगाने पे संकोच नहीं करते हैं। बाबा 11 जब संकट परिस्थिति पे होता है, तब ये संकट मोचन बन के सामने पर आते हैं। अनिरुद्ध अनिरुद्ध अनिरुद्ध, क्या बात है आपका। थैंक यू सो मच। आपण नार भाई गोटा शायरी कहबे इच्छा होई। जी जी आप मेरे चलिए कोई बात नहीं। ए सुनिथिली माने एमती सेव बने की कह देबी हो। वो जी जी ससुराल जी ससुराल ना हो, ससुराल में साली ना हो। जी वो जी खेल खेल ना हो, जिस खेल में क्रिकेट वाणी का कमेंट्री ना हो।
ओह क्या बात है। थैंक यू, बहुत मजा आया, पहली बार मेरे लिए किसने शायरी बताया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ टाइम दिए और ज्वाइनिंग मी अस इंस्टाग्राम लाइव। जरूर हम इस वीडियो को यूट्यूब पर लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, अनिरुद्ध का और भी चर्चा होगा। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के ऊपर। और बेस्ट विशेष क्रिकेट वाणी की तरफ से आप और भी आगे की तरफ जाए। अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। हेलो हाय टाटा बाय बाय, अनिरुद्ध स्वाइन। थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।